Welcome to bioinformatics. Okay, yes. Okay, sorry, net disconnect हुआ था. Okay, so sequence alignment. There are two types of sequence alignment: the pairwise alignment and the multiple sequence alignment. And so pairwise means if we are aligning only two sequences, that's maybe protein sequences or nucleotide sequences. Okay, so that's alignment is known as pairwise. Similarly, if we align more than two sequences, then those type of alignment is known as multiple sequence alignment. Uh, there are two types of alignment with respect to some algorithms. The first one is a global alignment, and the second one is local alignment. In global alignment, there are two types of algorithms: Needleman and the Stretcher Emboss, two algorithms. These algorithms are for especially for global alignment, and this was designed by Needleman Wunsch, and this alignment was designed by Stretcher. So you don't need to go in depth of the algorithm. Okay. Then in case of local alignment, you know what is the function of local alignment? Why we perform local alignment? Please let me know. Yes, please. सर जब हमने एंड टू एंड देखना होता है सीक्वेंसेस को. No, that is global alignment. जब end to end देखना होता है. Local alignment, you know, local region. Local, not a whole. End to end means a whole. जब आप global की बात करते हैं, आप इस word से याद रखें. Global means throughout the ओके global. ठीक है, whole. ओके सर. Local means a limited area, most similar and most conserved area. When we are interested to find most similar or most conserved region, then we will perform local alignment, right? And in local alignment, again, there are two types of alignment. We will go through all these algorithms. Sir, what is the abbreviation of EMBOS? EMBOSS. EM, European Molecular Biology, कुछ something like this. Actually, these algorithms are located at emboss. Emboss ये हैं यहाँ पे, अगर आप देखते तो emboss. एम्बल EBI वालों की वेबसाइट है emboss. No, this for sequence. ये हैं, इसका अगर आप देखते हैं तो ये सीक्वेंस एम्बल EBI. एम्बल EBI के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एम्बल EBI यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब है. सो इसके अंदर ये इम्बॉस उन्होंने आई थिंक इसके लिए कोई इस रिज उसकी वजह से कहा होगा. डिटेल में देखने की ज़रूरत है इसको. मैंने भी इसको कभी नोट नहीं किया कि एम्बल मॉलिक्यूल EBI ही से रिलेटेड होगा, बट इसको फर्दर के लिए इम्बॉस वाटर. Yes, we can check what it stand for. सर यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये बॉस. कहाँ पे है, मिला आपको? यस सर ये मैंने गूगल पे लिखा है ओके, बॉस.
वही चीज़ है, ये मैं बता रहा था, ये जो एम्बल है ना, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और ओपन सोर्स टूल्स नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ओके दैट्स गुड। ये हैं ओपन सोर्स के लिए टूल। उन्होंने एक वो बनाया हुआ है, एक एब्रीवेशन अपनी तरफ से, कोई ये कोई स्टैंडर्ड एब्रीवेशन नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि ग्लोबल ये यूज़ होता है, बट हर जहाँ पे भी वेबसाइट्स होती हैं जो, तो वेबसाइट के ऊपर अपनी आसानी के लिए उन्होंने कुछ एब्रीवेशंस बनाए हुए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल MSA, दिस इज़ नॉट ए assemble, that's स्टैंडर्ड symbol। जिस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक सिंबल्स हैं, दैट्स अ ग्लोबल एंड दैट्स स्टैंडर्ड, ठीक है। उसकी तरह यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। सो डिफरेंट टूल्स के बारे में इन्होंने बताया, यहाँ पे देखें, देर आर वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म ग्लोबल अलाइनमेंट एंड लोकल अलाइनमेंट। सो आप अलाइनमेंट के लिए इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। इवन देर आर मल्टीपल वेबसाइट्स, but you can go through this website. Let's see in our practical session। practical session में मैंने part 1 part 2 के साथ किया है। part 1 is about this website, ठीक है। इस वेबसाइट के जरिए देखें, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं नीडल के ऊपर, so it will open a new tab। so इसके अंदर आप सीक्वेंस पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज, if you are looking at, this is a pairwise sequence alignment। pairwise means you can input only 2 sequences, 2 sequences आप input दे सकते हैं सिर्फ, ठीक है। so this may be protein sequence, you can select here, it may be DNA sequences। तो उसके लिए हाँ, यस, हम एग्जांपल यूज़ करेंगे। एग्जांपल सीक्वेंसेस यहाँ पे ऑलरेडी हैं। अदरवाइज हमें क्या करना है, जो जिन सीक्वेंस को हम अलाइन करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली वी शुड हैव सम सीक्वेंसेस टू अलाइन। ऐसा ही है, अगर हम दो जीन को कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो वी शुड हैव द सीक्वेंसेस ऑफ दोस टू जीन्स। देन just paste one sequence in this box and the another sequence in this box। so for example, we use example sequence। this is example sequence, देखिए, this is sequence 1 gene 1, let's suppose this is gene 2, okay। then we are performing pairwise alignment, so just this is pairwise, you know, these are different matrices and the algorithms, so sorry, these are the output format। ये आपके पास आउटपुट फॉर्मेट है, आउटपुट फॉर्मेट आप किस फॉर्म में चाहिए। ये सारे के सारे जो आउटपुट फॉर्मेट है डिफरेंट, अगर आप फर्दर इनके ऊपर काम करें तब फिर आपको आइडिया होगा कि क्लस्टर डब्ल्यू एक आउटपुट होता है, फास्टा एक है, नेक्सस है, फाइलिप हैज लाइक दिस एक्चुअली। एंड द आउटपुट, जिस तरीके से हम आउटपुट रखना चाहते हैं, that's depend on what we will or what we are going to perform next experiment using this alignment। इस alignment को यूज करते हुए हम next कौन सा टूल, यस, कोई कुछ पूछना चाह रहे प्लीज पूछे। सर जो हम मोस्टली फॉर्मेट यूज करते हैं फास्टा यूज करते हैं। डिफरेंट है, फास्टा यूज करते हैं, क्लस्टर डब्ल्यू होता है, ठीक है। नॉर्मली फास्टा हम इस वजह से कहते हैं कि फास्टा वी ऑलरेडी नो द फॉर्मेट ऑफ फास्टा सिंपली, ठीक है। बट ये कि अगर हम इसी अलाइनमेंट से आगे अगर फालोजेनेटिक ट्री बनाना चाह रहे हैं, बट इन दिस केस इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देर आर ओनली 2 सीक्वेंसेस, यहाँ पे ओनली 2 सीक्वेंसेस हैं। अगर हम 2 से ज़्यादा सीक्वेंस अलाइन करते हैं, देन वी मे यूज some one of these। this depend on कि हम इसके बाद क्या फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, या हम इसके बाद इस अलाइन सीक्वेंस को हम फालोजेनेटिक ट्री बनाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। अगर फालोजेनेटिक ट्री बनाना चाह रहे हैं तो आप कौन से टूल्स यूज़ करना चाह रहे हैं,
क्योंकि each tool has its own input format, ठीक है। सो हमें क्या करना है, जो टूल्स हम यूज करना चाह रहे फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए, उसके इनपुट फॉर्मेट को हमने देखना है। उसी हिसाब से हम फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर, सॉरी उसी हिसाब से जब हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आउटपुट फाइल उसी हिसाब से हम जनरेट करते हैं, राइट। But at this case, in this case, as we have only two sequences, so we will use just pairwise pair. Then if you click at the more option, there are some parameters. यहाँ पे कुछ parameters हैं। इनको अगर आप डिटेल में पढ़े तो थोड़ा बहुत बल्कि चीज़ें देखने की ज़रूरत है। मैट्रिक्स, डिफरेंट मैट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। डीएनए फॉर्मेट एंड डीएनए मैट एंड फुल, दिस इज ओनली फॉर डीएनए। डीएनए के लिए उन्होंने 2 ही ऑप्शन रखा हुआ है। बट इन केस ऑफ प्रोटीन की अगर आप बात करते हैं तो देयर आर सेवरल मैट्रिसेस, ठीक है। और डिफरेंट मैट्रिसेस आपको डिफरेंट रिजल्ट्स देता है। गैप ओपनिंग, गैप एक्सटेंड, गैप एंड पेनल्टी, गैप एंड ओपन एंड, ये कुछ पैरामीटर्स हैं। हम इनकी डिटेल में जाना नहीं चाह रहे हैं, बट जैसा अभी डिफ़ॉल्ट है वैसे ही अभी फ़िलहाल इस स्टेज के ऊपर आप यूज़ करिए। बट हम इनको चेंज करते हैं उस वक़्त जब आप कोई जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से हट के कोई चीज़ आप फाइंड करना चाह रहे हो, तब हम ये चीज़ें सेट करते हैं। बट जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ बेस्ट इफ़ यू डोंट नो what should be the value of these parameters. इन पैरामीटर्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ द बेस्ट वैल्यू। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जो एल्गोरिदम डिज़ाइनर्स होते हैं वो ऑलरेडी एक कट ऑफ वैल्यू सेट करते हैं। जिस कट ऑफ वैल्यू के अंदर, अगर लिमिट के अंदर ही अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो दैट्स विल बी बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। मैं इनके डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूँ, तो so then just submit on click. Further, if you are interested to these parameters, उन parameters में अगर आप interested है तो I think I have already uploaded here the book. Okay, मेरा ख्याल था कि मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, बट बुक यहाँ पे अपलोड नहीं किए। मैं यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स बुक अपलोड करूँगा। अगर आप कोई स्टूडेंट अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी पैरामीटर्स को आप पढ़ सकते हैं। ये देखें, दिस इज अलाइनमेंट, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका क्या मतलब है, कोई बता दे प्लीज। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन आवर थ्योरी पार्ट। दिस मीन गैप्स, यस, ये गैप्स भी हैं, बट इनको हम कहते हैं डिलीशन भी कहते हैं। दिस इज इंसर्शन इन दिस सीक्वेंस, इट्स मीन्स दिस पार्ट इज डिलीटेड इन दिस पार्ट इन दिस सीक्वेंस। सिंपली टेस्ट 1 के अंदर ये रीजन डिलीट हुआ है, इस वजह से यहाँ पे गैप आया है। गैप क्यों आया है? डिलीशन की वजह से आया है, ठीक है। But in case of just 2 sequence, you are looking here, this is the insertions. इस जगह के ऊपर भी इंसर्शन है, इस रीजन के ऊपर भी इंसर्शन है, एंड इस रीजन के ऊपर भी इंसर्शन है, राइट। एंड these lines are showing exact 100% identical residues, ठीक है। एंड some of ये कुछ जो डॉट्स हैं दैट्स आर शोइंग लिटिल अ बिट सिमिलर, मींस फीचर्स के हिसाब से, करैक्टरिस्टिक्स के हिसाब से सिमिलर है, ठीक है। सो दिस वाज द कौन सा अलाइनमेंट किया था हमने, नीडलमैन। ओके, दिस वाज नीडलमैन अलाइनमेंट। सो इसी को हम एज सच रखते हैं, एक और हम परफॉर्म करते हैं डिफरेंट एल्गोरिदम्स के ज़रिए, राइट। सो ये सीक्वेंस मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ। इसी सीक्वेंस को हम
different. This was a test 1 and this was test 2 sequence. So this was global alignment और now we are, ये ग्लोबल अलाइनमेंट था क्यों, ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। ग्लोबल अलाइनमेंट मींस एंड टू एंड। ये देखें इस एंड रीजन को भी इन्होंने कंसीडर किया है कि दिस इज द डिलीशन इन द सेकंड, ठीक है। बट ओके, सिमिलरली देयर इज अनदर स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर से तरह परफॉर्म करते हैं, सेम सीक्वेंसेस को हम अलाइन करते हैं, फिर कंपेयर करेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं नीडलमैन में और स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के अंदर। So again, we are using same DNA sequence. Where was the sequence? Okay, copy, copy and paste. So we are, okay. This is known as FASTA format, right? इसको हम FASTA format कहते हैं, क्यों? Because it's starting with greater sign followed by the gene name or identity or accessions. Then from the next line, sequence is starting. Okay, so just submit this and let's compare with the previous. Okay, so we are also duplicating this, we are going back. No, this was through stretcher and this was through needleman. Can we compare these two C alignment? अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इस फास्ट ऑफ, इसको मैं ज़रा यहाँ पे एक और फाइल बना लेता हूँ ताकि यहाँ से अलाइनमेंट के अंदर थोड़ी सी खराबी आ रही है, सो वहीं पे ही रखें। ओके, देन जस्ट कंपेयर दीज टू। इसको अगर आप देख लेते हैं तो कोई फ़र्क है इनमें? यस, देयर आर सम डिफरेंसेस, अलाइनमेंट में डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्ट से शुरू हो रहा है और इन्होंने सीक्वेंस 2 के अंदर, टेस्ट 2 के अंदर गैप्स दिया है, ठीक है। इसमें था कि इन्होंने टेस्ट 1 के अंदर गैप दिया है और टेस्ट 2 के इनिशियल पॉइंट के ऊपर उन्होंने गैप दिया है, बट इसके अंदर देखिए अलाइनमेंट डिफरेंट है। सो using different algorithms we will get different results, right? So the selection of right algorithm is very important according to our aim of study. आपके स्टडी के एम के मुताबिक आपको इनकी सिलेक्शन भी उसी हिसाब से करनी है कि आपको कब कौन सा यूज़ करना है। इसके डिटेल में आप फर्दर पढ़ सकते हैं। उस बुक का नाम है इसेंशियल बायोइन्फॉर्मेटिक्स बुक, ठीक है। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड with some of you. This is a bioinformatics book for practical session. This is a good book, ठीक है। आप इसके अंदर डिटेल में हैं, जो कुछ हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे डिटेल में यहाँ पे अवेलेबल है। ये बुक तकरीबन मैंने कंप्लीट किए हैं, सारे की सारी कंप्लीट बुक मैंने ये पढ़ी हुई है बुक। देखिए जहाँ पे हाईलाइट किया है ये उस वक्त मैंने किया था 2016 में। 2016 में मैंने ये बुक कंप्लीट किया था, मैंने कम उस वक्त ये गो थ्रू किया था। ओके, ये देखिए बायोलॉजिकल डेटाबेसेस, ठीक है। डेटाबेस क्या है, व्हाट इज डेटाबेस एंड अबाउट डिटेल ऑफ द डेटाबेस, वेयर इज द टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, दिस इज टेबल ऑफ कंटेंट इफ यू आर लुकिंग हियर। देखिए
So according to this book, we have gone through these two sections. हमने ये दो सेक्शन कंप्लीट किए हैं, and we are now in theory we are discussing the sequence alignment. Okay, and in practical sessions we are performing now pairwise sequence alignment. इसके अंदर जो डिफरेंट मेथड्स हैं, ये देखिए मेथड्स के अंदर हम एम्बॉस स्ट्रक्चर, एम्बॉस नेडल, एम्बॉस लोकल अलाइनमेंट एंड ग्लोबल अलाइनमेंट, इनके बारे में हम इस मेथड के अंदर पढ़ रहे हैं, राइट. Database similarity searching, that was BLAST. We have already performed this tool. If you are looking here, this is ये ह्यूरिस्टिक मॉडल के बारे में हमने बताया था. व्हाट इज ह्यूरिस्टिक मॉडल? जुगाड़ तरीका होता है, जो फास्टेस्ट होता सिस्टम होता है. और फास्टा, दीज आर टू टूल्स फॉर लोकल अलाइनमेंट के लिए हैं. ब्लास्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसका ट्यूटोरियल भी है प्रैक्टिकली. वेयर इज द ब्लास्ट? यस, दिस वन. ये देखिए, ये देखिए, दिस इज द detailed practical session of BLAST. So what's next? Multiple sequence alignment. We will cover this part in today practical session. Basic अगर आप background, अगर आप theory पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, so आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. बट क्लास के अंदर डिटेल में ईच स्कोरिंग मैट्रिक्स को पढ़ना या ईच टूल्स के डिटेल में पढ़ना, दैट्स नॉट पॉसिबल ड्यू टू टाइम लिमिटेशन. ठीक है, अदरवाइज हमारे पास अगर टाइम होता तो मैं ये पूरी बुक में पढ़ा लेता. पिछले सेमेस्टर को मैंने तकरीबन यहाँ तक मैंने कवर किया था, 15 चैप्टर तक यहाँ तक मैंने कवर किया था पिछले स्टूडेंट्स को. बट देखते हैं आपकी क्लास में कहाँ तक हमारा कवर हो जाता है. ओके, so I will also share this with the move to SS 2021. S 2021 है? Yes, sir. Okay, now you can find this book in your folder. आप अपने फोल्डर में देख सकते हैं. यस, दिस इज एसेंशियल बायोइन्फॉर्मेटिक्स. ठीक है, आप इस बुक को फर्दर डिटेल में पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं. So then we are performing the next experiment. Okay, this was the global alignment. Global alignment में आप अगर दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों में एंड टू एंड है. देखिए, ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये 46 के ऊपर, 46 के ऊपर एंड, मतलब एंड टू एंड अलाइनमेंट हो रहा है. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू लोकल अलाइनमेंट. लोकल अलाइनमेंट के अंदर देयर आर 3 एल्गोरिदम्स, डिफरेंट एल्गोरिदम्स. सो वाटर को पहले हम चेक करते हैं कि वाटर के साथ क्या रिजल्ट आता है, राइट. सो आपने ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, और एक आप मैनुअल बना दें. आपको कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बट मैनुअल बनाने की ज़रूरत है आपको. जो ऑलरेडी यहाँ पर मैनुअल है, इस मैनुअल के अंदर यहाँ पे लास्ट में एक है प्रोसीजर के बाद रिजल्ट्स. ठीक है, इस रिजल्ट्स के अंदर आपने ये पेस्ट करना है स्नैपशॉट लेके कि दिस वाज स्ट्रक्चर रिजल्ट, दिस वाज नीडलमैन रिजल्ट, एंड दिस वाज वाटरमैन. ठीक है, इस तरीके से आपने ये सेट करना है, एक मैनुअल बनाना है. मैनुअल एट द एंड में चेक करूँगा, साथ साथ में चेक भी करता जाऊं. शायद आप लोगों से मैनुअल किसी भी दिन मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकता हूं कि आप अपना मैनुअल मुझे चेक करा दें. ऑनलाइन क्लास में ही चेक होगा, एंड उसी की बेस पे फिर आपकी मार्किंग भी होगी. ठीक है, सो अपना मैनुअल यहाँ से इस मैनुअल को ले लें, और इसी मैनुअल के लास्ट में रिजल्ट्स के अंदर जो काम आप कर रहे हैं एटलीस्ट 2-3 स्नैपशॉट्स यहाँ पे लगा के रखें.
इन रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है, आप लोग इजीली ले सकते हैं जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। सर यस प्लीज। सर जो आपने लास्ट टाइम ब्लास्ट वाला दिया था वो आपको आज की क्लास में चेक कराना है? नहीं, वो आप लोग बना के रख लें, असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड करें। ओके, मैंने आप लोगों को बताना था, ये असाइनमेंट है फोल्डर। ठीक है, इसके अंदर लेट्स सी कि आप लोगों में से ओके ये हैं, आपकी क्लास में GRCR कोई है? प्लीज बताएं। ओके, मैं ज़रा फिर यहाँ से आपके जो टॉप पे स्टूडेंट आ रहा है, अब्दुल रहमान, आर यू देयर? अब्दुल रहमान, सर वो ना, ये उसकी अगली क्लास है सर। उनकी क्लास नहीं है। ओके, सो आमना नकवी, आमना नकवी है? ओके, अनाया मंजूर हैं? सर उसकी भी नेक्स्ट क्लास है। अनाया मंजूर, सर नेक्स्ट क्लास है उसकी। सर उसकी 11 बजे वाली क्लास है। तो ये सारे के सारे नेक्स्ट क्लास में हैं। हु इज फरन नदीम हैं? नो सर मेरी सुबह वाली है। फरन नदीम की बात कर रहा हूँ। और कौन है आप में से? ओके, मुझे ऐसे पता सर नहीं चला। इम्तियाज अहमद। इम्तियाज अहमद है यहाँ पे? यस सर। ओके, आप फाइल को अरेंज कर सकते हैं, स्टूडेंट सारे के सारे आपको ईमेल करे तो? ओके सर। मतलब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं अगर हर बंदे को एडिट का ऑप्शन दे दूँ, तो मसला ये होता है कि एक स्टूडेंट ना अपने फाइल को अपलोड करने के चक्कर में दूसरे की जो फाइल है वो डिलीट कर रहा होता है। सो एट द एंड मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की फाइल मुझे मिल जाती है असाइनमेंट, कुछ की नहीं मिलती है। इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ मैं एक स्टूडेंट को असाइन करूँ जो क्लास का CR हो, सारे के सारे उसे ईमेल करें, डिटेल में अपना नेम, फाइल नेम क्लियर होना चाहिए। फाइल नेम के ऊपर सबसे पहले आपकी आईडी हो, आईडी के बाद फिर आपका नेम हो, नेम के बाद जो टाइटल है, सो टाइटल मींस जिस लाइक असाइनमेंट है तो अगर टाइटल है तो आप शॉर्टकट यूज़ करें, सीक्वेंस अलाइनमेंट है तो SA लिखें। ठीक है, अगर ये ब्लास्ट है तो सिंपल ब्लास्ट लिखें। ब्लास्ट के बाद आगे सेक्शन लिखें, A1 A2 A3 A4 जो भी है। ठीक है ये हम वर्ड पे बनाएंगे, जी। वर्ड पे बनाएंगे या मैनुअल पे? यस, आप वर्ड पे बना दें, ये देखें यहाँ पे वर्ड पे बना दें, बट इसको ओके पेस्ट करते हुए इस तरीके से पेस्ट ना करें जो अभी मैंने यहाँ पे किया इसको, बल्कि आप इस तरीके से पेस्ट करें, लाइक दिस इज रिजल्ट। आप स्नैपशॉट ले लें, प्रिंट का ऑप्शन है, स्नैपशॉट ले लें। स्नैपशॉट के बाद आप इसकी पिक्चर यहाँ पे लगा सकते हैं। आप इधर इसकी पिक्चर लगा सकते हैं। अब मुझे इसमें देखना होगा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है जहाँ से मैं इंसर्ट इमेज, इंसर्ट इमेज के अंदर जाएं और आप पिक्चर में जाएं, दिस, ये देखें। अब इसको आप क्रॉप करें, थोड़ा सा क्रॉप करके जो रीजन आपकी उससे रिलेटेड हैं ये रीजन, बाकी एडिशनल रीजन को डिलीट करें, सिर्फ ये रीजन लगा दें। ये देखें, ठीक है। सो इस तरीके से रिजल्ट्स लगा दे। पहले ऊपर सबसे ऊपर 2 सीक्वेंसेस, फिर दिस वाज द रिजल्ट ऑफ, कौन सा था ये, रिजल्ट ऑफ एम्बॉस
embossed structure. It was embossed structure and यहाँ पे आप लिखिए embossed structure और उसके बाद नेक्स्ट पे आप जाएं फिर embossed needle, उसके स्नैपशॉट लेके लगा दें. उसके बाद now we are performing what this is local alignment. So इस तरीके से चारों जो अलाइनमेंट यहाँ पर हैं आप उसको फॉलो करिए. ओके सो ये अगर आप देख रहे हैं तो यस प्लीज. सर ये जो अभी आपने आज करवाए हैं ये वाले भी और जो पिछले वाले भी है ये सारे वर्ड के फाइल में लगा के तो इम्तियाज को हम सेंड कर दें. यस इसको फाइनल कर दिए ना आप. इम्तियाज को नेम क्लियर होना चाहिए. सर इम्तियाज को साइन करें. सर बट वो वाली और असाइनमेंट तो उसमें तो आज वाले नहीं थे ना कौन सी असाइनमेंट सर जो आपने लास्ट लैब में दी थी. लैब में ली थी वो सर बच्चों? कह वो रहे हैं सारे सारे इकट्ठे कर लें. देखिए आप लोग एक मैनुअल टाइप बना दे. इसी मैनुअल के अंदर या आपके पास जस्ट लाइक दिस शुड बी ए कॉपी लाइक आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसमें आपको पता हो कि आपने क्या परफॉर्म किया है. हार्ड कॉपी नहीं बट सॉफ्ट फॉर्म में हो. राइट प्रोसीजर आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी है. प्रोसीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आप रिजल्ट्स लिखें. रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन अगर एक दो लाइनों में आप बता दें कि ये दो इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस है. नाउ कमिंग टू द एम्बॉस वाटर रिजल्ट. देखें इस रिजल्ट में और इन दोनों में कोई फ़र्क है रिजल्ट में, इसमें और इसमें. ये देखिए both are starting with 1. It means start of the sequence 1 and ending with 45 end of the sequence. ये हैं ग्लोबल. ठीक है जो एंड टू एंड अलाइनमेंट हो रही है. एंड दिस इज वाटर स्मिथ वाटर emboss. दिस इज लोकल अलाइनमेंट. लोकल अलाइनमेंट में देखिए द फर्स्ट सीक्वेंस इज स्टार्टिंग एट 5 से स्टार्ट हो रही है. सो इसका मतलब है इससे पहले जो 1 से 5 तक है वो उनके अंदर और यहाँ से 1 से 3 तक है उनके अंदर कोई सिमिलरिटी नहीं है जिसकी वजह से इसने क्या किया है इसको शो ही नहीं किया. सिर्फ उस रीजन को शो किए हैं जो कंजर्व हो हाईली. एंड 5 से स्टार्ट हो 37 के ऊपर क्लोज हो रहा है. खत्म. आगे कुछ नहीं बताया कि 37 के बाद इस सीक्वेंस के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और इस सीक्वेंस के अंदर क्या सिमिलरिटी या डिफरेंसेस है. सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ लोकल अलाइनमेंट एंड ग्लोबल अलाइनमेंट. अब क्लियर हैं. लोकल अलाइनमेंट के अंदर देखें जो कंजर्व रीजन है वही फाइंड हो रहा है. इट्स मींस दिस इज हाईली कंजर्व रीजन. These may be some motifs or domain. बट इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो कंजर्व रीजन तो है ही शो हो रहा है. ठीक है क्योंकि अलाइनमेंट इज टू अलाइन टू सीक्वेंसेस बट इट्स आल्सो शोइंग द एंड सीक्वेंसेस. ये देखिए स्टार्ट के भी सीक्वेंसेस हैं और एंड के भी सीक्वेंसेस शो हो रहा है. दिस इज द मेन डिफरेंस. देन नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड. हमने वाटर से लिया. नाउ वी आर यूजिंग द मैचर. अगेन इसमें भी आप अगर सिंपल ओके टेस्ट सेम है सो जस्ट परफॉर्म अलाइनमेंट. So this is about the next algorithm. If you are looking here, देखिए there are again some differences. Even within the local alignment के अंदर भी जो algorithms हैं, that are giving different results. For example, this was again local alignment because it's starting with 5, and this is again local alignment. But इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है. ये देखिए ठीक है. और जो मेनली हमें सेलेक्ट करना होता है वो दैट शुड बी स्कोरिंग. ये देखिए स्कोरिंग एक चीज़ है. यस प्लीज कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं.
जैसे मैं यही पूछने वाली थी कि टेस्ट 1 और टेस्ट 2 में हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वो हैं डिफरेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल गैप्स हैं, इंसर्शन है, डिलीशन है, लेकिन जो इन्होंने स्कोरिंग में बताया हुआ है कि यस, आइडेंटिटी 69% है और सिमिलैरिटी भी ये 69 देखिए है, तो बच्चों, इनकी जो आप सिलेक्शन मोस्टली करते हैं दैट शुड बी बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स, हम कुछ पैरामीटर्स की बेस पर, ठीक है। पहले भी हमने पढ़ा था, जब हम मल्टीपल से ब्लास्ट परफॉर्म करते हैं तो हम स्कोरिंग को देखते हैं, जो मैक्सिमम स्कोर है वो टॉप लेवल पे आता है। इसके अंदर 51 है, इसमें 62 है, इट्स मींस इट इज कंपैरेटिवली गुड अलाइनमेंट रादर देन दिस अलाइनमेंट। और सिमिलरली अगर हम इनको आपस में अलाइन करते हैं लाइक ग्लोबल अलाइनमेंट, सो ग्लोबल अलाइनमेंट को आपस में कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर देखें देयर इज -18 स्कोर, वेरी लो स्कोरिंग, ठीक है, इस मेथड के अंदर। एंड एम्बॉस को अगर आप देखते हैं तो देयर इज 56.5 स्कोर। सो कौन सी अलाइनमेंट बेस्ट है? अब आपको स्कोरिंग के हिसाब से आइडिया होना चाहिए। जब हम ग्लोबली परफॉर्म कर रहे हैं देन दिस रिजल्ट इज गुड, दिस इज Needleman result is quite good. And when we are performing local alignment, then this is quite good for the two sequences. क्या है, कौन सा है? Yes, Smith Waterman, ठीक है। So this is quite good. ये चीज़ें आप फिर यहाँ से स्कोरिंग की बेस पर आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा अलाइनमेंट लेकर आपको फर्दर नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ चलना है, राइट? ये आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी क्या शो कर रही है? ये देखिए, आइडेंटिटी मींस हाउ मेनी रेजिड्यूज आर आइडेंटिकल इन द टू सीक्वेंसेस। आइडेंटिकल मींस एग्जैक्ट पर्सन, जी है तो यहाँ पे भी जी हो, आइडेंटिकल है। सिमिलरिटी मींस सिमिलरिटी मींस बेस्ड ऑन द फीचर्स लाइक दिस। कुछ जो प्यूरिन, अगर प्यूरिन के साथ, प्यूरिन के सामने अगर प्यूरिन अमाइनो एसिड हो, सॉरी प्यूरिन के साथ अगर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड हो, इट्स मीन दीज आर सिमिलर, ठीक है। अगर प्यूरिन एक लोकेशन के ऊपर प्यूरिन है, दूसरे के ऊपर पायरिमिडिन है, देन दीज आर डिसिमिलर, ठीक है, इसको हम सिमिलर नहीं कहते हैं। सो इस टाइप की एक सिमिलरिटी और डिसिमिलर, जो सिमिलरिटी होती है दैट्स विल बी बेस्ड ऑन फीचर, करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे होता है। आइडेंटिटी मींस 100% क्लोन, 100% ओके सेम सर। होता है, ठीक है। यस सर। सर यस प्लीज। सर ये स्कोरिंग क्या शो करती है, एक बार दोबारा बता दें। स्कोर यहाँ पर Scoring क्या is चीज showing शो कर रहा है? scoring is showing the uh, exact alignment. जितनी स्कोरिंग ज्यादा होगी ना, इट विल बी द गुड अलाइनमेंट और द बेस्ट अलाइनमेंट, ठीक है। ओके जितना सर। स्कोरिंग कम होगा इट्स मींस आपकी जो अलाइनमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल कंपैरेटिवली इसमें देखें, इसके अंदर 51 है, राइट। इस यस अलाइनमेंट को सर। आप देख ले तो बहुत सारी डिसिमिलरिटीज आपको नजर आ रहा है। अगर आप इसको देखें, इसके अंदर जो कंजर्व रीजन है वो क्लियर है, इसमें कंजर्व रीजन इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। ये देखें, थोड़ा सा रीजन ये है, उसके बाद हर एक दो अमाइनो एसिड के बाद सम डिसिमिलर अमाइनो एसिड आ रही है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, राइट। इसके अंदर आप देख लें, दिस रीजन इज हाईली कंजर्व्ड, देन दिस इज हाईली कंजर्व्ड, देन दिस इज हाईली कंजर्व्ड। उन्होंने एक दो गैप्स दिया है, बट जो कंजर्व्ड रीजन है उसको फाइंड किया है। सो द स्कोर ऑफ दिस अलाइनमेंट इज 62. So we will consider this is a good alignment rather than this alignment, right? ओके Similarly, सर। this was the Needleman and the global alignment, and this was Stretcher, again local global alignment. So we have two result of each alignment, this one and this one. These two belongs to global alignment and these two belongs to local alignment, right? We are comparing local global alignment with global and global alignment with local alignment.
आप कंपेयर कर रहे हैं, आपको आइडिया होना चाहिए कि ये देखें, इफ यू आर लुकिंग है द स्कोर ऑफ दिस इज -18, -18 ये माइनस में है, ठीक है, बट इफ यू आर लुकिंग द Needleman results, then the scoring is 56. So we will consider this is a good result. This is a good alignment. ठीक है? Okay, sir. This was the comparison of local alignment and the global alignment. ठीक है? And there is another uh, algorithm, and that's specially for, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है कि टू सीक्वेंस जब इनके क्या डिफरेंसेस हैं, एक दफा इनको पढ़े तो आई थिंक मोर क्लियर होगा. To calculate the local alignment of the two sequences and identify local similarities between two sequences using a rigorous algorithm based on the Lalin application. And this is the Lalin to find internal duplication by calculating non-intersecting local alignment of protein or sequences. So this is another algorithm. इसको भी हम देख लेते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास when we are okay, so that's different. Okay, so this is using another algorithm of local alignment. So in this way, now we have 3 algorithms from local alignment and 2 algorithms from global alignment. Okay. So it's giving different results. Different option आपको दे रहा है. इसकी important ये है जो लालिन में आप that's giving multiple results. ये देखें, ये आपको अगर याद हो तो when we have performed blast result के बाद वहाँ पे कुछ पैरामीटर्स था ऊपर, maximum score, identity percentage, coverage percentage, like this, similarity percentage. ठीक है, यस ये देखें यहाँ पर ये चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ा था क्या मतलब है. सो लालिन इज आल्सो गिविंग अस मल्टीपल अलाइनमेंट्स, मल्टीपल रिजल्ट्स. वन रिजल्ट इज ये एक रिजल्ट है, और इसके अंदर स्कोरिंग वगैरह यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है. 58 है स्कोरिंग, then 51 scoring, then 36 scoring, then 31. So it's giving different results. ठीक है, मल्टीपल रिजल्ट्स हमें दे रहे हैं. सो कौन सा सबसे बेस्ट है? That has highest scoring with you, right? 58. So 58 is the best alignment out of these 3 to 4 alignments, right? So we will consider this alignment for further analysis. Okay, then coming to the next. So now we will perform multiple alignment. This was the pairwise based alignment. ठीक है, अभी तक हम pairwise sequence alignment कर रहे थे, अब हम multiple alignment perform करेंगे. cluster W एक प्रोग्राम है. So go to cluster W, EBI के ऊपर हैं, अगेन यूरोपियन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट्स पे, बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट. ये where is it? No, that's not. Okay, so there are different types of alignment. Multiple alignment के लिए different tools हैं. और उसमें currently जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो muscles है. ठीक है,
बट यहाँ पे आपके इजी के लिए मैंने सिर्फ एक ही टूल मेंशन किया है, दैट इज क्लस्टर W। आप फिलहाल एट दिस स्टेज जस्ट यूज क्लस्टर W। ओपन दिस, you will come up at this site then ये देखिए is a general purpose DNA for and protein for multiple sequence alignment for 3 or more than 3 sequences। ठीक है, जब आप 3 और 3 से ज़्यादा सीक्वेंस को अलाइन करते हैं तब आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल्स में आते हैं। ये इस अगर आप इस होल वेबसाइट को अगर देख रहे हैं तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, और इसी में से टूल्स के अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस, ये सारे के सारे डिफरेंट टूल्स हैं। So for multiple sequence alignment, where was the sequence alignment? Okay. So ये muscles का ऑप्शन है और this is cluster W। ठीक है, यहाँ से आप इस टूल को सिलेक्ट करें। वाइज फॉर आवर पेयर वाइज अलाइनमेंट टूल्स, पेयर वाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी आर परफॉर्मिंग मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए कौन कौन से रिकमेंडेड हैं? फॉर प्रोटीन अलाइनमेंट, स्पेशली फॉर प्रोटीन के लिए we recommend cluster omega, and for DNA alignment we recommend trying muscles or MAFT। These are two advanced tools जो DNA के लिए हैं specially, and this is for omega, cluster omega। This is for especially for protein। Even we can perform DNA alignment using this tool, but as far as recommendation is concerned, this is good for protein as compared to DNA alignment। ठीक है, so for example, as you know, we are using multiple sequence alignment, so 3 या 3 से ज़्यादा आपके पास sequences होना चाहिए, right? ये उस वक्त हम करते जब हमारे पास एक पूरी फैमिली हो, 100 या 150, मतलब मीन्स मोर देन 3 सीक्वेंसेस हो, और हम उन सीक्वेंसेस में कोई कंजर्व्ड रीजन फाइंड करने में इंटरेस्टेड है, then we will use this multiple sequence alignment method, right? So then just submit and wait for the result। Okay, now look at this. This is our result, and and there are 3 sequences, one from Moses, one from human being, and one from HPAZ। I don't know कि ये कौन से sequence हैं, because this was from example sequences। So if you are looking here, the statics, इसे हम कहते हैं statics। Statics are showing 100% identical residues। अब DNA alignment और protein multiple alignment में थोड़ा सा फर्क है। पेयर वाइज अलाइनमेंट और मल्टीपल अलाइनमेंट में थोड़ा सा फर्क इस तरह से है कि उनके रिप्रेजेंटेशन में फर्क है। पेयर वाइज अलाइनमेंट में आपने देखा कि दोनों सीक्वेंस के दरमियान में एक लाइन शो हो रहा था, that was indicating identical residues, right? But multiple sequence alignment में हम multiple sequence alignment में दरमियान में हम लाइन इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, so some symbols we use। इनको देखिए तो the statics showing 100% identical region in all sequences। ठीक है, it means this region is, अगर आप static को देखिए आप देख सकते हैं कि कौन सा रीजन हाईली कंजर्व्ड है, like
this region, this may be some motifs, and this region is highly conserved, and then triplets of amino acid, these. ठीक है? So one thing is statics is showing 100% identical, right? Then the second line, जिसे हम colon कहते हैं, colon is showing similarity or similar residues. क्या है? Similarity, most similar residues. और सिंगल आपको शो कर रहे हैं. सिंगल मींस उससे थोड़ा सा डिसिमिलर, मतलब 100 कहते कि अगर एसिडिक है तो फीचर थोड़ा बहुत सिमिलर हो. You know, in case of proteins, there are 20 amino acids, and on the basis of acidic and basic, there are three features, three classes: acidic, basic, and neutral. Similarly, अगर आप उसकी बात करते हैं कि phobic, some protein, some amino acids are charged, some are non-charged. So in case of amino acids, there are different classes, so different features हैं. So सबसे statics is showing 100% identical. Then the double line, double dots column is showing similar amino acid. Then dot is showing nearly similar. Sorry, this is nearly similar and this is distantly similar. ठीक है, थोड़ा बहुत सिमिलर है बट थोड़ा सा इतना ज्यादा सिमिलर नहीं है. ठीक है. एंड इफ देयर इज ब्लैंक, अगर कहीं पे कोई ब्लैंक है तो इट्स मींस टोटली डिफरेंट अमाइनो एसिड्स एट दिस लोकेशन. इस लोकेशन के ऊपर टोटली डिफरेंट अमाइनो एसिड है. ठीक है. सो when we read the multiple sequence alignment, we look this region, these symbols. This is also known as the consensus sequence. जो हम इस सीक्वेंस के अंदर कहाँ था, इसमें हम देख रहे थे एक अलाइनमेंट को. इसमें जो हम अलाइनमेंट देख रहे थे, इस अलाइनमेंट के एंड के ऊपर, where was the alignment? ये आप अगर देख रहे हैं तो देखें. सो ये जो कंसेंसस सीक्वेंस है, एक्चुअली these symbols are showing the consensus sequence. Static means 100% M on all sequences. This means little bit similar sequences, and this is distantly similar amino acid residues at this site. ठीक है. So this is the result of multiple sequence alignment. So that was all today our practical session. So if there is any query, please let me know. Now it is open for the discussion, please. Excuse me, sir. Yes, please. सर ये मल्टीपल सीक्वेंस वाले में हमें उसमें ये स्कोर का पता नहीं चलेगा? स्कोरिंग का? यस सर. स्कोरिंग इस वक्त होता है जब आप पेयर वाइज अलाइनमेंट कर रहे हो. तो यहाँ पे स्कोरिंग इन्होंने नहीं बताया मेरे ख्याल से. स्कोरिंग यहाँ पे स्कोरिंग कोई नहीं होता. Scoring actually is a scoring value है that comes from a pairwise alignment matrix. मैट्रिक्स की बेस पर स्कोरिंग की वैल्यू आती है जो पेयर वाइज की बेस पे होता है. दो सीक्वेंसेस इनका आपस में अगर देखें तो एक स्कोरिंग आएगा. ठीक है. सो इफ यू आर लुकिंग एट, यहाँ पे लिखा हुआ है ये दिस इज फॉर 100% आइडेंटिकल. डबल डॉट्स आर द ये कॉलन दैट्स कंजर्व्ड सब्स्टिट्यूशन हैव बीन ऑब्जर्व्ड. कोई एक सब्स्टिट्यूशन है सिमिलर है, and this is semi-conserved substitutions amino acids.
ठीक है, उसके बाद आप कोई राइट यहाँ पे इस रिजल्ट को आप पेस्ट कर दें इसके अंदर। ओके, ठीक है। अगर किसी सर आपने स्टूडेंट को मैनुअल शेयर किया होगा? यस मैनुअल शेयर है आप लोगों के साथ, ठीक है।